Hello children. So welcome back to class 7th, chapter number 5, acid, base and salt. So in my previous lecture I told you about the properties of acids and bases and the names of certain common acids and bases, right? So at home also we see lot many acids. They are natural acids and natural bases and they are very harmless, है ना? So let us know how do we know that something is acid or base, right? So we have studied about various indicators, and the most commonly used indicator is the litmus paper, right? So litmus paper को भी now humans have converted it into two colors, and that is how we can get better taste. जो एसिड होता है दैट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. ब्लू क्या वो स्लाइटली मूविश होता है, so acid converts blue litmus paper into red. On the other hand, base converts red litmus paper into blue. Now as we are recording, I'll show you certain examples of we'll begin with acid. So I have with me certain acids from home. Like I have, this is the lemon juice, and this I have taken the cooking vinegar, the white synthetic vinegar. So this contains acetic acid, vinegar contains acetic acid, and lime juice contains citric acid, right? So here we are saying that the acid will convert blue litmus paper into red. Perfectly all right. We will see how does it happen, right? So I have this blue litmus paper with me, and I have this lemon juice containing citric acid with me, and I am putting this blue litmus paper. I think you can see it there, otherwise very beautifully we can see the blue litmus paper has turned into red. This means that yes, I was not lying and this was the acid, right? Let us do, so can you see the blue converting into red color? Now we'll do another test. We'll do it with acetic acid, which is found in the vinegar, and I'll take another blue strip of litmus paper and I'll put it into this. You can see it transparent hai. You can see the change in the color. See, right? So it is proven that this is acid because this is converting blue litmus paper into red. चलिए अब हम लोग बेस को भी देख लेते हैं. बेस के लिए क्या कह रहे हैं कि it converts red litmus into blue. So I need red litmus and I need base. What have I taken? I have taken soap, है ना? I have taken soap washing powder solution, and this is the red litmus strip, and this is my soap solution. ठीक है? So this is a strong base. Soap usually has strong base, not so strong that it will harm you, but see, you can see the change in the color. It is very much visible, and I'll dip it a little more. See, the red litmus has turned into blue, so hence it is base. But मैम ये तो आप नॉन बता रही थी, है ना? मैंने एक और लिया था, मैंने लिया हुआ था ये बेकिंग सोडा. जो किचन में बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. I have taken this. So this is another base, very soapy in touch and bitter in taste, but we don't have to touch it, right? Now ma'am, ये आपको पता था कि ये एसिड है ना? इसलिए आपने बता दिया कि एसिड will turn blue litmus into red. What if we do not know that whether the solution is acid or base? तो हम लोग ये भी करके देखते हैं. हमने लिया एक बेस और हमने लिया ब्लू लिटमस. बेस का टेस्ट क्या कहता है? टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. तो अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो फिर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, है ना?
तो उससे पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि बेस. आई डोंट नो व्हाट इज दिस. आई हैव मिक्स्ड इट. आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज इट. एंड is there any change in the color? Blue litmus remained blue, that means it is a base, right? And same blue litmus now I am putting into my other test tube. Whether it is an acid or base, we will come to know. I don't know what it is. ये न्यूट्रलाइज्ड हो गया है, इसीलिए चेंज ऑफ कलर नहीं आ रहा है उतना, क्योंकि उसमें पहले मैंने बेस डाला था. लेकिन चलिए आ गया. It is there. See, it's very much there. Yeah. So my blue litmus became red. That means this solution is acid. ठीक है. चलिए अब हम लोग रेड लिटमस को भी यूज कर लेते हैं. I have red litmus and this we know. I don't know what is that, although we have just done the test. So I have red litmus and I am putting it into this solution. No change in color. Red litmus अगर एसिड में डालेंगे there will be no change in color. There is no change in color. But यही red litmus अगर हम बेस में डालते हैं दूसरी, है ना, तो आप देखिए चेंज डेफिनेटली होगा. And there should be change. See, it has turned blue. That means it is a base. ठीक है. So litmus test से हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. It automatically tells us that whether a solution is acid or base, because while tasting you may hurt yourself. It could be fatal also. Right. So this was about how in the laboratory you will come to know that something is acid or base. We do that with the help of litmus paper. Now there is another word which is very much in fashion these days, and that word very common, very popular, and that word is acid rain. Children, you need to know about it, है ना? So what happens before corona to has changed the shape of the world, not shape, the condition of the world, the environment of the world, because man has stopped all his industrial activities. There are less people on the road, there is less pollution, less industrial work, है ना? So just because of that there is less pollution. So there is, the atmosphere is very much clean, है ना? Animals, birds, they are very happy. Rivers are getting clean on their own. गंगा प्रदूषण जो हमारा था उसमें सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन लोग अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डालते थे. पीपल यूज टू थ्रो गार्बेज इनटू इट, है ना? सो वी कुडंट क्लीन गंगा इवन आफ्टर स्पेंडिंग crores of rupees. And now you have seen the videos, it is absolutely clean because human activities are stopped. So it is the human who is responsible for all these wrong things that is happening to the mother earth and nature. ठीक है, we need to cut it down. So what is acid rain? जो excessive pollution होता है उससे हमारी कौन सी gases निकलती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. Now what happens? These gases go up in the air, they mix with the water droplets, water molecules, and what do they make? They make acids. यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है H2SO4. यहाँ पे हमारा बन रहा है नाइट्रिक एसिड, इसको बोलेंगे, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कार्बोनिक एसिड. ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड. अब ऊपर एटमॉस्फेयर में ये एसिड बन गए, है ना? सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट, गैस पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन mixed with water droplets made sulfuric acid. Nitrogen dioxide, again air pollutant, went up in the air, met with hydrogen, water vapor, made nitric acid.
Carbon dioxide, carbon monoxide met with water vapor made the carbonic acid. ठीक है, यही एसिड जब नीचे आता है बारिश की बूंदों के साथ में, we call it acid rain. This is very harmful for soil, this is very harmful for buildings, this is very harmful for humans. Wherever the acid will fall, it will cause corrosion and damage. Soil में क्या हो जाएगा, soil acidic हो जाएगी, है ना. तो नाउ अगर हमारी कोई भी चीज़ ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो गई है तो हम उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी कैसे ख़त्म करते हैं. सो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन. वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रलाइजेशन. Here it says when acid meets base in proper proportion, what will happen? They cut each other's character, है ना. बेस एसिडिटी को मार देता है, खत्म कर देता है. एसिड जो होता है वो बेस की बेसिसिटी को खत्म कर देता है और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी, है ना. एनर्जी भी निकलती है हीट के फॉर्म में. किस फॉर्म में निकल रही है, हीट के फॉर्म में. क्यों भाई, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, इनके कैरेक्टर्स खत्म हो रहे हैं, है ना. एंड आइंस्टाइन हैज सेड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म. तो एसिड की एसिडिटी में एनर्जी थी, बेस की बेसिसिटी में एनर्जी थी. जब इन्होंने एक दूसरे की एनर्जी को ख़त्म किया तो एनर्जी को काटा, ख़त्म तो नहीं हुई, वो क्या हुई, वो हीट के फॉर्म में निकलेगी. ठीक है, तो जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं वो लेबोरेटरी में हो पाएगा क्योंकि उसके लिए वैसा एसिड और पर्टिकुलर सॉल्ट चाहिए, बेस चाहिए. तो एसिड और बेस जब एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर होता है, और जो एनर्जी यहाँ ख़त्म करी गई है वो हीट के फॉर्म में निकलेगी. तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में, जिस भी वेसल में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं वो गर्म हो जाएगा. क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी निकली. तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी निकलती है उनको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक. क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक. एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकल रही है वो एक्सोथर्मिक होते हैं. या आप 10th में पढ़ेंगे, आपको अभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो मैम इसका उल्टा भी होता होगा. हाँ जी, बिल्कुल उल्टा होता है. आप जब चाय बनाते हो, है ना, तो आप उसमें अलग अलग चीज़ें डालते हो, पर वो कैसे मिक्स होती है, जब तक आप उसको हीट एनर्जी नहीं देते हो, है ना. तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक. एंडो मतलब अंदर आता हुआ, थर्मिक तो जहाँ पर एनर्जी अंदर ली जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है, दोज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. बट लेट्स कम बैक टू द चैप्टर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस मेक सॉल्ट which is neither acidic nor basic. It's neutral, water and energy. Let us see an example quickly. Acid हमने लिया HCl, base हमने लिया NaOH, sodium hydroxide. Salt हमारा क्या बना, salt हमारा बना sodium chloride plus water plus heat energy निकल गई. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो एसिड और बेस को हमने मिक्स करा, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बना जो कि ना ही एसिड था ना ही बेस था, वाटर और हीट एनर्जी निकली. दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, आफ्टर दैट चिल्ड्रन वी विल स्टडी अबाउट यूजेज ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो देखिए कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं. भाई जो भी हम साइंस में पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं तो हम इस्तेमाल करेंगे. दैट नॉट ओनली इट बेनिफिट्स अस, है ना. वॉट एवर वी स्टडी वी नीड टू यूटिलाइज इट.
So let us see, we are going to study wherever we use neutralization reaction. One we use in indigestion very much. Our eating habits are so bad that we need to neutralize the acid. In case of ant bite, चींटी के काटने पे आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो वाई, द पेन इज देयर, ठीक है ना. फिर आपकी जब सॉइल एसिडिक हो जाती है ना, सॉइल एसिडिक या बेसिक हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है. और लास्टली फैक्ट्री वेस्ट. भाई पढ़ने का मतलब यही है कि हम उसको कहाँ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू यूज न्यूट्रलाइजेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस सो दैट you do not have to get much problem. First is indigestion. Whenever we eat a lot or lot of spicy food or our eating habits are wrong, what happened, the acid which is secreted by the stomach is secreted in a huge quantity, and what happens then, you start suffering, है ना. आपको burning sensation होती है, गैस बनती है, पेन होने लगता है. तो क्या करते हैं, आपको मम्मा या पापा देते हैं डाइजीन, जेलोसिल, है ना. क्यों? क्योंकि उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. इट्स अ बेस. तो ये बेस हमारे स्टमक में जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको रिलीफ मिलता है. दूसरा आपने बेस देखा होगा इनो में, है ना. इनो भी आपने पिया होगा, जब भी एसिडिटी होगी कहते हैं 6 सेकेंड में आराम मिलता है. ऑफ कोर्स बेस जो है वो वाटर में डिजोल्व होके जा रहा है, इमीडिएटली इट इज न्यूट्रलाइजिंग द एसिड एंड यू आर गेटिंग रिलीफ. नेक्स्ट इज एंट बाइट. चींटी काटती है, बहुत दर्द होता है ना. इचिंग होती है, दर्द होता है, रेड कलर का आपका चकत्ता पड़ जाता है, ऑल दोज थिंग्स हैपन. So the ant bite contains formic acid. आपको बहुत अच्छे से पता है अगर एसिड है तो क्या यूज़ करना है. किचन में बेकिंग सोडा होता ही है, विच इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. आप फटाफट उसको लगाइए, उस जगह पर रब करिए एंड विद इन सेकेंड्स आपका पेन चला जाएगा. दूसरा होता है कैलामाइन लोशन, लोग घर में रखते हैं. कैलामाइन लोशन में भी जिंक कार्बोनेट होता है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब हार्मफुल नहीं होता है स्किन को, बट या इट इज़ अ गुड बेस. सो कैलामाइन सोल्यूशन आप उस जगह पर रब करिए, इमीडिएटली आपको आराम मिलेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल एसिडिक या बेसिक हो जाती है, बहुत सारे रीजंस हैं. फर्टिलाइजर्स है, एसिड ड्रेन है ना. उस जगह की लोकेशन, कैसे पानी से इरिगेशन हो रहा है, सो बहुत सारे रीजंस हैं. तो सॉइल अगर एसिडिक हो जाती है तो हम उसमें क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है हमारा क्विक लाइम, या हमारा होता है स्लेग्ड लाइम. आपकी बुक में लिखा हुआ है दोनों. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको पानी में घोलकर सॉइल में डाल देते हैं सो दैट प्लांट्स कैन ग्रो प्रॉपरली, ठीक है. अगर सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, प्लांट विल नेवर ग्रो प्रॉपरली. सो farmers, they mix quicklime or slaked lime into the water and put it into the soil to neutralize it. Now what happens, soil can become basic also. Yes, okay, so we have solution for that also. अगर soil basic हो जाती है तो farmers उसमें खाद मिला देते हैं, manure, compost, है. and compost is slightly acidic, right. सो जो कंपोस्ट है वो धीरे धीरे एसिड सिक्रीट करती है एंड इट न्यूट्रलाइजेस द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल. सो सॉइल बिकम्स न्यूट्रलाइज एंड प्लांट्स आर हैप्पी, फार्मर्स आर हैप्पी बिकॉज प्लांट्स कैन ग्रो प्रॉपरली इन दैट न्यूट्रल सॉइल. लास्टली फैक्ट्री वेस्ट. जो भी फैक्ट्री वेस्ट होता है वो बहुत एसिडिक होता है, ठीक है. तो ऑफकोर्स अगर वो एसिड वाला फैक्ट्री वेस्ट पानी में नियर बाई वाटर बॉडीज में डालेंगे, सो व्हाट विल हैपन, द वाटर ऑफ दोज वाटर बॉडीज विल बिकम एसिडिक. सो व्हाट विल हैपन, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, टॉर्टोइस, they will start getting killed because
acid is, this factory acid is to absolutely chemical acid, है ना? So they won't be able to survive. So what happens, what ideally should be done, that this factory waste should be treated with base and neutralize it, and then only it should be discarded in the nearby water bodies. Right? Ideally people should do it, but they don't do it, and that is why you have seen from time to time it comes in the news that in a nearby water body the fishes die. Because why? Because that factory waste was containing a lot of acid, right? So this is how we use neutralization in our day-to-day life, so that our life becomes comfortable, easy and harmless. Alright, so children, this is all about chapter number 5, class 7th, and any doubt, anything, you can always ask me in the comment section. And my parting question to you is, what is the pH level? There is a word pH level, हम लोग बात करते हैं, अब higher classes में पढ़ोगे. I'm telling you, pH level tells whether something is acidic or basic. So for neutral, the pH is 7. अगर 7 और 0 के बीच में है ना, तो ये हाईली एसिडिक है. मतलब जितना नंबर कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक है. लाइक 1 pH लेवल इज मोर एसिडिक दैन 5. ठीक है, 3 इज मोर एसिडिक दैन 7. 7 हमारी न्यूट्रल होती है, और उसके बाद जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड बढ़ते हैं 14 तक लेते हैं, तो वो बेस होता जाता है. ठीक है, तो अगर सपोज बेसिसिटी 11 है और 8 है, तो ऑफ कोर्स 11 इज मोर बेसिक दैन 8. ठीक है, सो ये हो गई हमारी पीएच स्केल. माय क्वेश्चन, माय पार्टिंग क्वेश्चन टू यू इज, टेल मी द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड. राइट, I repeat the question, what is the pH level of human blood? Please find it out and keep safe, keep happy. Thank you very much.